तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ओशन इंटरनेशनल साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से प्री डिप्लोमा इन एक्सरसाइज स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी 3D मीन्स डिसेबिलिटी डिसीज एंड डिसऑर्डर में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारे साथ जो रिसोर्स पर्सन है बहुत ही जाने माने प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव है। रिटायर्ड प्रोफेसर है ग्वालियर में और उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। आज का जो सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स एंड कैंसर। और कैंसर होने के बाद या तो कोई बहुत बड़ी बीमारी होने के बाद लोग स्पोर्ट्स के बारे में एक्सरसाइज के बारे में सोचते भी नहीं है और बाहर नहीं निकल पाते। तो ऐसे ही लोगों को हमको मैदान में लाना है, स्पोर्ट्स में लाना है। इस मोटिवेशन के साथ आज हम डॉक्टर विजय श्रीवास्तव सर की तरफ चलते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते, उन्हीं से हम डायरेक्ट बात करेंगे। वही अपना पूरा जो नॉलेज है इसमें प्रैक्टिकल फील्ड का वो आपके सामने रखेंगे और साथ में अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ओवर टू डॉक्टर विजय श्रीवास्तव जी। तो हम शुरू करते हैं। ओके, स्टार्ट। Good morning, all of you, especially all the parents गुड मॉर्निंग। of the disabled children, especially the cancer patient. You parents are the backbone and the motivating factor behind all the children who are suffering from, not only children, everybody who is suffering from any kind of cancer disease or disability. You should encourage all these children and the persons who are suffering from all these diseases to come on the sports ground and participate in one or the other activities. I just remind you that I was suffering from cancer in 2007. It was fourth stage. I went through chemotherapy and radiotherapy. And after that, even after one set of chemotherapy of 5 days and 2 days of weakness, on 8th day, I used to be on the ground and used to take my classes, to play with my students, and used to very comfortably and rigorously used to participate with the students. I was taking class, I was taking the cricket class, I was bowling, I was batting, I used to do exercise with them, and with the result, you are seeing me here after 17 years, I'm in front of you. So always encourage your family members who are suffering from all these diseases to come on the cricket ground or to come on the sports ground. And if you see the abbreviation of sport, sports is S stands for smile, P stands for participate, O for organized and recreational and testing sports. What I mean is you should participate in any kind of sports activity, not for competition, not for winning, not for making somebody to lose. What you have to do is you should encourage all these people to participate in sport just for fun and enjoyment. That is the beauty of sport. Because when they participate in sports activities, the first thing they release is the stress and anxiety. And they are the main causes of any diseases. Therefore, you have to manage the stress and anxiety through various sports and games. मैं एक शेयर के साथ करूंगा कि आजकल लोगों में इतना स्ट्रेस हो रहा है कि लोग people are dying with this, committing suicides, committing a lot of personal harms to them just because of anxiety and stress. And people like me who encourage myself to participate in sports activities to control my disease. तो इनके लिए एक शेयर से मैं आगाज करूंगा। उन लोगों के लिए जो स्ट्रेस से मर रहे हैं, जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, और मैं अपने लिए कह रहा हूं मरने की आरज़ू में जिए जा रहा हूं। This is what is
This is what is the life is all about. You should participate wholeheartedly in sport. When you participate in sport, you develop harmony, you develop physical fitness, you develop immunity, you develop, you strengthen your body muscles, you develop your cardiovascular muscles, you develop all your organs, and with the result, you develop your immune system. And once the immune system is developed, no disease can no disease can be with you. Therefore, it is very, very important to participate in any kind of sports activity. Now, there are two major things in, in my lecture is, one is the preventive aspect and another is the curative aspect. When you want to prevent the disease, I just said, always participate in sports activities and develop immunity so that you can fight against any disease. The American Association of Cancer Research has said, if people participate in sports activities for 6 days a week, they reduce the chances of cancer by 20%. And all the women and men who participate 9 hours per week, they increase the potentiality to fight against this or to develop immunity to 50%. And that is what, because when you are suffering from cancer, there are so many factors which can be responsible for the factors. One is the immune system. If your immune system is reduced, all the cancer cells are always there in your body. If your immune system is down, that will catch you and you will suffer from cancer. Number two, when you participate, and then second cause of this is the inactivity. When you don't participate in an activity, you develop all these problems. The third is the genetic problem. That cannot be controlled because that has to be there. The only thing is, if you develop immune system, the genetic problem also can be reduced. I have said, if you participate in 6 days per week, 20%. If you participate 9 days a week, you reduce it by 50%. Therefore, it is very, very important to participate in sports activities to prevent cancer. Now, the treatment part, the curative part. When you are already there with the treatment, chemotherapy, radiotherapy, all other, curative medicine they give, and with the result, you are weak and weak every day with the result of the curative medicine they put in you, whether it is chemotherapy, whether it is radiotherapy, or some other alternate therapy. Now, when you are undergoing treatment, then also, after, as I said, after 5 days, 2 days, I was having chemo for 5 days, then 2 days some vomiting and side effects and all. And on 8th day, I used to be on the ground. I used to walk, I used to jog, I used to play with the students, because when you play, there is so much of fun and enjoyment, and you can easily reduce your stress. This is very important because, and when you are under treatment, the first thing sport does it reduces the side effects. When you participate in sports activities, you develop immunity, you develop strength, you develop, the efficiency of various organs of the body. You reduce the side effects of chemotherapy. Otherwise, there are plenty of side effects. And with the result, person who don't participate in sports activities, they suffer more and more. Therefore, and maybe sometime you are on the bed.
So when you participate in sports activities, the first thing it does is it reduces the side effect. Then the risk of relapse, जो दोबारा हो जाता है कैंसर, उसको रिड्यूस करती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप कर रखी है, आपने ऑलरेडी you got rid of your anxiety, you got rid of your tension, you got rid of your stress, and with the result, the reoccurrence is reduced to a very greater extent when you participate in sports activity. Then, when you participate in sports activities, that you develop your strength of the joint, because joints are very important for the movement. If you don't move your body, if you are on the bed, gradually you reduce your body physical fitness, and with the result, you will have multiple problems, and ultimately a time will come you will not get up from the bed. Therefore, immediately after the treatment, under the supervision of the doctor, under the supervision of the sports expert, you should participate in all these activities. When you participate in these activities, it helps to combat stress and anxiety. आप जब खेलने जाते हो तो केवल आप खेल के बारे में सोचते हो. आप केवल you participate when you are participating, when you are playing ball games, your concentration is only on the ball. When you are walking, your concentration is on the walk and the breathing. And with the result, the stress is gone. The stress is gone. And when stress is gone and your stress is managed, you develop lot of immunity. And as I said, when you participate in sports activities, the risk of relapse, the reoccurrence reduced. Now, when you participate, after the treatment, when you participate in sports activities, what is more important is you should develop your own goal with the help of experts and with the help of the sports expert, doctor expert and sports expert. Now, when you have to make your own schedule, how much you have to do, कितना आपको करना है, कितनी देर तक आपको करना है, कितनी स्पीड में आपको करना है, कितना स्ट्रेंथ उससे डेवलप होगी, कितनी वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस डेवलप होंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कार्डियोस्पेक्टिव एंड्योरेंस एंड सो ऑन, कोऑर्डिनेशन एंड ऑल. तो जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यू मेक योर ओन शेड्यूल. आप डॉक्टर के साथ बैठिए, एक्सपर्ट के साथ बैठिए, अपना शेड्यूल बनाइए. ऐसा कभी मत करिए कि आप ग्रुप के लिए शेड्यूल बनाए, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो. नो, नेवर डू इट. क्योंकि हर एक की टॉलरेंस कैपेसिटी डिफरेंट होती है. मेरे लिए शेड्यूल बिल्कुल डिफरेंट होगा, पब्लिकर जी के लिए डिफरेंट शेड्यूल होगा, और तीसरे लोगों के लिए डिफरेंट शेड्यूल होगा. Therefore, it is very important to make your own schedule. आप कितना करना चाहते हैं. कई बार क्या होता है, एक बार भी आप नहीं कर पा रहे. सपोज आपको 40 मिनट वॉक करना है या 30 मिनट वॉक करना है, और आप एक साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, उसको 2 भागों में डिवाइड कीजिए. सुबह 15 मिनट कर लीजिए, शाम को 15 मिनट कर लीजिए. तो दैट विल ऑल्सो गिव द सेम इफेक्ट. लेकिन आप पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा. लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी स्पोर्ट्स से आपको बोरियत होने लगे, स्ट्रेस होने लगे, एंजाइटी, आपकी लोड ज्यादा हो रहा हो, उसी समय आप बंद कर दीजिए. यू गो डू एंड यू डू सम अदर एक्टिविटीज लाइक यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक. कोई जरूरी नहीं है कि आप वॉक कीजिए, जॉग कीजिए और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए. कई बार आप अपने घर में म्यूजिक लगाइए, यू जस्ट डांस अराउंड. आप डांस कीजिए, आप एरोबिक एक्सरसाइजेस कीजिए, आप रोप स्किपिंग कीजिए,
आप स्विमिंग कीजिए, कोई भी आप कर सकते हैं। यू गो फॉर ए पिकनिक विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, वहां पे एंजॉय कीजिए, कुक योर फूड, अपना खाना बनवाइए, खुद खाइए, सबको खिलाइए। दिस इज व्हाट इज द स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट। स्पोर्ट्स इज नॉट ओनली गोइंग टू द ग्राउंड, स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटीज इन एनी वे, किसी भी तरह से, जो भी आपको खुशी दे, जो भी आपको आपका स्ट्रेस मैनेज करे, उन चीजों में आप पार्टिसिपेट कीजिए। कई बार आपने देखा होगा, हम एक छोटे बच्चे के साथ बैठे होते हैं, उसके साथ खेलते हैं, दैट गिव्स अस सो मच ऑफ प्लेजर, फन, एंजॉयमेंट। प्लस उसके साथ जब पीछे पीछे आप भागते हैं, पीछे पीछे भागते हैं, पीछे पीछे दौड़ते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ खेलते हैं, दैट इटसेल्फ डेवलप्स योर इम्यूनिटी। देयरफॉर आप एक ऐसा गोल सेट कीजिए कि आपको वीक में किन किन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि एक एक्टिविटी में अगर आप करेंगे तो लगेगा यार बोर हो रहे हैं, एक ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एक ही जगह जा रहे हैं। नंबर वन, जब आप वॉक कर रहे हैं तो आप डिफरेंट जगह जाना, वॉक कीजिए, एक जगह केवल वॉक मत कीजिए। आप कभी समुद्र के किनारे चले जाए, इफ यू आर लिविंग टूवर्ड्स कोस्टल एरिया, पहाड़ों के साइड में, तो कभी पहाड़ों की तरफ निकल जाइए। आप अगर शहर में रह रहे हैं तो पार्क में चले जाइए, पार्क भी चेंज करिए। कभी आप एक पार्क में जाइए, दूसरे दिन दूसरे पार्क में जाइए, तीसरे दिन तीसरे पार्क में जाइए। प्लस हर दिन आप अपनी एक्टिविटी चेंज कीजिए। कभी आप फुटबॉल खेल लीजिए, कभी आप क्रिकेट खेल लीजिए, कभी आप बास्केटबॉल खेल लीजिए, कभी आप वॉकिंग कर लीजिए, कभी आप जॉगिंग कर लीजिए, कभी आप रनिंग कर लीजिए। ये सब चीज चेंज होना, ये आपके वीकली शेड्यूल में आपको इंक्लूड करना है। आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा पूरा। जब आप शेड्यूल बना रहे हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंटेंसिटी, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, कि कितनी इंटेंसिटी होगी आपके जब आप कर रहे हैं, कितना गैप होगा उसके बीच में, रिकवरी फेज, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको करना है, और कितने कितने बार रिपीट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अनलेस, जब तक आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे, इंटेंसिटी, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, आपको कोई फायदा नहीं होगा। और फिजियोलॉजी, द एक्सरसाइज प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी सजेस्ट कि एवरी 15 days your body gets adapted to a particular load. सपोज आप 20 मिनट वॉक कर रहे हैं, तो जब आप 20 मिनट रोज वॉक कर रहे हैं, 15 दिन के बाद या तो आप स्पीड बढ़ा दीजिए, जिसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, या डेंसिटी, जो हम बीच में रेस्ट करने जाते हैं, उसको आप रिड्यूस कर दीजिए। 5 मिनट का रेस्ट कर रहे हैं, तो आप 4 मिनट का रेस्ट कर लीजिए। तो आपने अपने पर लोड किया। कितने ड्यूरेशन के लिए? अगर आप 5 मिनट कर रहे हैं, आप 20 मिनट कर रहे हैं, आप 25 मिनट कर दीजिए। एंड हाउ मेनी रिपीटिशन, कितनी बार आपको करना है, वो आप कर दीजिए। तो आपको जब भी शेड्यूल बनाए, इंटेंसिटी, डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन को ध्यान में रख के बनाए कि कितना लोड आपकी बॉडी सस्टेन कर पाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप, कई बार हम, पता नहीं होता, हम पहले दिन इतने लोड की कर लेते हैं कि दूसरे दिन वी डोंट गो टू द ग्राउंड एट ऑल, क्योंकि वी आर टायर्ड। ऐसा कभी मत कीजिए। एंड स्टार्ट स्लोली, स्लोली। आप किसी की बात मत मानिए। यू जस्ट टॉक टू योर डॉक्टर एंड एक्सपर्ट, एंड डोंट लिसन टू एनीबडी। कि कोई आपका दोस्त बोल रहा है चलो आज मेरे साथ वॉक करने चलो, आज मजा आएगा, बोलो नो। अपना शेड्यूल मैं खुद अकेले करूंगा, उसके बाद आई विल टॉक टू यू, और हम लोग बैठ के बातें करेंगे एंड वील एंजॉय, बट नॉट। आप कभी भी ध्यान रखना, जब आप अकेले करते हो तो आप अपना शेड्यूल
क्लियर करते हो। नहीं तो क्या होगा, या तो आपका दोस्त स्लो चल रहा होगा या तो आपका दोस्त बहुत फास्ट चल रहा होगा, और दोनों ही केस में आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। Therefore, when you make a schedule, weekly schedule, and the type of activity in everyday schedule, 2 दिन आपको पूरे रेस्ट करने हैं, सैटरडे संडे कंप्लीट रेस्ट। उसमें आप यू कैन गो फॉर पिकनिक, यू कैन गो फॉर फैमिली ट्रिप, और वो कर लीजिए आप, लेकिन 2 दिन आपको पूरा रेस्ट करना है, सो दैट योर बॉडी कम्स डाउन एंड दिस विल डेवलप योर फिजिकल फिटनेस। और जब आपकी एक बार फिजिकल फिटनेस डेवलप हो गई, दैट विल फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज, फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज। एंड दिस इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन यू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। अब आपको अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदार को, अपने सगे संबंधियों को जो इस तरह के सफर कर रहे हैं, उनको एनकरेज करना है कि भाई चलो ग्राउंड पे चलते हैं, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। कई बार क्या होता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो पार्टिसिपेट करे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। तो आपको क्या करना है, आप उसको ग्राउंड में ले आइए, लेट हिम सिट, लेट हर सिट, उसको बैठिए, आप एक्टिविटी कीजिए और उसको देखने दीजिए। कई बार क्या होता है, पर्सन फील्स टायर्ड व्हेन ही वॉक्स अराउंड, तो आप एक काम कीजिए, एक बास्केटबॉल कोर्ट में एक बॉल रख दीजिए, लेट हिम शूट, उसको क्या शूट करने दीजिए, अपने आप खेलने दीजिए। बास्केटबॉल के अगेंस्ट एक बॉल ले लीजिए, आप अपने से ड्रिबल करके आप चारों तरफ वॉक कीजिए। फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल में यू कैन प्ले योर ओन, आप अगेंस्ट द वॉल जो है किक करिए, बॉल उठाइए, फिर किक कीजिए, फिर बॉल उठाइए, एंड दिस विल ग्रेजुअली डेवलप, नंबर वन, increase your physical fitness level, and on the other hand, it will develop curiosity in you कि या मजा आ रहा है, और पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट। कई बार आप लोग आईपीएल देख रहे हैं, आईपीएल में जितने लोग ग्राउंड पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितना वो एंजॉय कर रहे हैं, उससे ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं जो लोग पब्लिक में बैठे हैं। दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, लेकिन फन, इंजॉयमेंट, जो उनको मिल रहा है, एक छक्का पड़ा, एक चौका पड़ा, उनका बैट्समैन आउट हो गया, उनको फील्डिंग से ओवरथ्रो मिल गया, ये सब चीजें जो हैं, दैट मैंने एक बार LNIPE में अपने कॉलेज में एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था क्रिकेट का, इंटर क्लास टूर्नामेंट, टेनिस बॉल। उसमें मैंने क्या किया था, मुझे पता था कि केवल 11 पार्टिसिपेट करेंगे एक क्लास से, बाकियों का क्या करना है। तो मैंने क्या किया, क्विज कंपटीशन उनके लिए ऑर्गेनाइज कर दिया, उन सबको पेपर दे दिए, क्विज कंपटीशन उनको दे दिया। अब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज कंपटीशन में, उनको हमने एक्सरसाइजेस दे दी कि किस तरह से तुमको चीयर करना है, किस तरह से तुमको अपने प्लेयर्स को एनकरेज करना है टू डू बेटर एंड बेटर, एंड विद द रिजल्ट the whole, you will not believe, the whole institute, all the teachers participated in the program, and that is what is required. कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि स्कूल में बच्चा पूरी फीस देते हैं, सारे बच्चे स्पोर्ट फीस देते हैं, लेकिन खेलते थोड़े बच्चे हैं। एक बार मुझे सेंटर स्कूल के प्रिंसिपल्स की कॉन्फ्रेंस में मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया, और उनमें से एक प्रिंसिपल ने पूछा, सर द चिल्ड्रन आर नॉट कमिंग ऑन द ग्राउंड। तो मैंने कहा, उनसे केवल एक ही चीज कही कि स्टॉप ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। जहां पे लगता है कि यार जीतना जरूरी है, अब मुझे पता है मैं पिपलीकर जी के से थोड़ा वीक हूं, मैं उनसे हार जाऊंगा, जिसके डर से मैं जाता ही नहीं, मैं ग्राउंड पे नहीं जाता हूं कि यार मैं क्यों हारूं, क्यों सब लोग हंसी मेरा मजाक उड़ाएंगे, सब करेंगे। नो, इस कंपटीशन की बजाय हमको ऐसी चीज ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जिसमें पर्सन कम्पीट विद हिज ओन परफॉर्मेंस। मैंने आपको बताया, बास्केटबॉल का रिंग लगा दो, आपने बास्केट फेंकी, आज नहीं गई, फिर दूसरे दिन आए 1 गई, तीसरे दिन आए 2 गई,
तो ये मुझे एनकरेज करेगा, यार आज मैंने एक किया है, आज मैंने दो किया है, आज मैंने तीन किया है, सो आई एम competing with my own performance, to my own performance. This is what is required in the, आपने बचपन में देखा होगा बच्चे अनऑर्गेनाइज गेम खेलते हैं, कभी छुपा छुपैया खेलते हैं, आप लोग आई डोंट नो किस नाम से जानते होंगे, कभी आट्या पाट्या खेलते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी लुक्का छुपी खेलते हैं। ये जो फन देता है बच्चों को, यही यही असली स्पोर्ट्स है। अभी मैंने वर्धा में कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला था, जब उन्होंने कहा था पास्ट एंड प्रेजेंट का एमलगमेशन कैसे हो। मैंने कहा जब तक आप पास्ट को नहीं लाओगे आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हो। आप उन चीजों को लाओ जिसमें बच्चे खुद पार्टिसिपेट करते थे और देयर वाज नो लूजिंग एंड विनिंग, एवरीबडी वाज विनर। व्हेन एवरीबडी इज ए विनर आप सब पार्टिसिपेट करोगे। आरडी कॉबर्टीन, द फादर ऑफ ओलंपिक्स, 1896 में उन्होंने कहा था, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट एक्टिविटीज, रादर इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू विन, रादर इट इज इम्पोर्टेंट टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट करना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा कंपटीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में न्यू दिल्ली में कहा था, प्ले द गेम इन द ट्रू स्पिरिट द गेम। जीतो और दूसरे को भी चांस दो जीतने का। अगर कोई जीत रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, उसको जाओ कॉन्ग्रेचुलेट करो। कोई हार रहा है उसको जाओ उसके साथ सिंपैथी करो, उसको बताओ यस हार्ड लक, यू लूज दिस टाइम, लेकिन यू वर्क हार्ड एंड आई एम डेफिनेटली यू विल विन नेक्स्ट टाइम। ये जो इनकरेज करोगे आप अपने जो बच्चे जो पेशेंट्स हैं, जो घर में पेशेंट्स हैं, उनको इनकरेज करो कि वो इस तरह की चीजों में पार्टिसिपेट करें और पार्टिसिपेट करें और इम्यूनिटी डेवलप करें, सो दैट यू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। पिपलेकर जी टाइम कितना है? टाइम एक मिनट, 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट आप ले सकते हैं, आपको 5 मिनट, जितना लेना है वैसे। पहले ठीक 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, है ना? नो प्रॉब्लम। तो जब हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, तो आपको ये देखना है कि जिन गेम्स में, जिन एक्टिविटीज में आपको इंटरेस्ट हो उसमें जाइए। नेवर फोर्स एनीबडी टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी इन विच इज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जब आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो यू विल नॉट गिव योर फुल इन दिस स्पोर्ट्स। तो आपको पहले ये पता लगाना है आपका बच्चा, आपका परिवार वाला, आपका सगा संबंधी जो इस तरह के डिजीजेस में से गुजर रहा है, वो किस तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है। सपोज स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है तो आप उसको गजल सुनवाओ, उसको भजन सुनवाओ, उसको गाने सुनवाओ, उसको म्यूजिक लगा दो, उसके साथ डांस करो, उसको पिकनिक पे ले जाओ, उसको स्विमिंग कराओ, उसको दूसरी चीजों में पार्टिसिपेट कराओ जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। नेवर फोर्स एनीबडी टू पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिक्रिएशन। आपको जो भी एक्टिविटी करनी है दिस इज ओनली फॉर रिक्रिएशन। अगर रिक्रिएशन होगा तो आप हंसोगे, खुल के हंसोगे, एक बार खुल के एक बार हंस दिए तो सबसे पहली कोई चीज आपकी बॉडी से जाती है वो एंजाइटी और स्ट्रेस। बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो। कई बार क्या होता है आपका गाना गाने का मूड कर रहा है और आपको पता ही हो नॉट ए सिंगर, आप अकेले बैठ के गाना गाओ, आप अकेले बैठ के गाना गाओ, जैसी भी आवाज हो, जो भी हो, यू विल इंजॉय। क्योंकि आपने देखा होगा हम लोग जब पहली बार खाना बनाने जाते हैं, कई बार रोटी जल जाती है, कई बार दाल में नमक ज्यादा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें से टुकड़ा जो अच्छा अच्छा होता है उसको छांट करके और हम लोग जो खाते हैं और उसके बाद जो मजा आता है
दैट इज द बेस्ट, दैट इज द बेस्ट एक्टिविटी। आपको क्रिएटिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है बच्चे को, ना कि ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। लेट हिम क्रिएट हिज ओन वे ऑफ प्लेइंग द गेम। आप उस गेम को मॉडिफाई कर दो, उस गेम के रूल्स चेंज कर दो, उस गेम का टाइप चेंज कर दो, हर तरह कर दो। फॉर एग्जाम्पल, कॉम्बिनेशन ऑफ फुटबॉल एंड क्रिकेट, कॉम्बिनेशन ऑफ बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। ये जो ये जो आप करोगे, इसमें जो फन एंड एंजॉयमेंट होगा, वही आपको धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएगा। आपने देखा होगा, सचिन तेंदुलकर से एक इंटरव्यू में बात हो रही थी, तो उसने बोला कि मैं पार्टिसिपेट अगर वर्ल्ड कप में या इंटरनेशनल क्रिकेट में करता हूं, दैट हैज बिकम वर्क फॉर मी। मेरे लिए काम हो गया है कि मुझे रन बनाने हैं, मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन कहता आज भी जब मैं गली क्रिकेट खेलता हूं, अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेलता हूं, उसका मजा ही कुछ और है, उसका मजा ही कुछ और है। और ये आपको करना है, बच्चे को इनकरेज करो, लेट हिम पार्टिसिपेट इन गली 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 स्पोर्ट्स। उस गली में स्पोर्ट जो हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने दो, क्योंकि वहां अपने लोग होते हैं, अपने लोग। कोई आपकी मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा, कोई आपसे जीत हार की बात वहां पे नहीं होगी, और जिसकी वजह से आपको बहुत मजा आएगा पार्टिसिपेट करने में। एंड देयर इज फन एंड एंजॉयमेंट व्हेन यू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट, इन दीज काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी। एक चीज मैं सबसे ज्यादा कहना चाहूंगा कि एक्सरसाइज मेक कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी वेरी इफेक्टिव। बहुत जरूरी है, आप पार्टिसिपेट करोगे तो जब आप गोइंग रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, योर बॉडी विल बी रेडी टू फाइट अगेंस्ट द साइड इफेक्ट्स ऑफ द कीमोथेरेपी। आपको बहुत अच्छी तरह पता है, आपने पढ़ा भी होगा, आपने अपने रिश्तेदारों में देखा भी होगा कि कीमोथेरेपी के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, इवन दैट कैन डैमेज योर किडनी if you don't drink plenty of water, plenty of liquid. Your heart is also suffered. आपके लंग्स सफर करते हैं, आपके दूसरे ऑर्गन्स भी सफर करते हैं when you are undergoing रेडियोथेरेपी, क्योंकि वो जहर आपके अंदर में डाला जाता है। वो तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है, so that you participate, you fight against all these side effects of chemotherapy and radiotherapy. So I will not take much of your time, because too much of lecture and lengthy lecture is always boring. So it should be very effective. And then kill the bird when time comes. So I'm killing the bird. So with all best wishes from me and to all the participants and their family members who are suffering from all these diseases, and wish that God will be with you, God will bless you, and they will recover from all these diseases and will live a very healthy life. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर विजय श्रीवास्तव जी, बहुत ही बढ़िया आपने मोटिवेट किया कि स्पोर्ट्स और कैंसर डिसीज। वैसे तो डिसीज होने के बाद एक तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स वाले को कोई डिसीज होता नहीं, हुआ तो भी वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं। जिन आम आदमी को होता है उनको रिकवर करने में बहुत ही परेशानी होती है। तो ऐसे जो भी पेशेंट आपके आजू बाजू में है, यही प्रैक्टिकल है कि इन लोगों को ग्राउंड में लाना, गार्डन में लाना, कुछ एक्सरसाइज करना, उनकी हॉबीज, कहीं घूमने जाना, और उनको एक रूम से बाहर निकलना, यही मेन उद्देश्य है हमारा इस प्रोग्राम का। और जो आजकल के बच्चे स्पोर्ट्स छोड़ के पढ़ाई में या गैजेट में व्यस्त है,
उन सभी को फिर से ग्राउंड की तरफ लाना, फिर से उनका बचपन लौटाना। तो यही मोटिवेशन है। इसी तरह के जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी स्पेशल ही रह जाते हैं, घर के बाहर निकल नहीं पाते, तो उनको भी ग्राउंड में लाना। ये सब प्रैक्टिकल वर्क है। ये तो हमारा 30 मिनट का जो भी सेशन था, ये 30% का थेरी सेशन है, और 70% आपको प्रैक्टिकल उन बच्चों को, उन लोगों को ग्राउंड में लाना है, एक्सरसाइज में लाना है। तो ये प्रैक्टिकल अगर आप सबमिट करते हैं तो ही हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे। बहुत लोगों का कॉल आता है कि सर्टिफिकेट कब मिलेगा। हमारे जो ग्रुप में 400 के ऊपर लोग ज्वाइंट है, और यूट्यूब के जो वीडियो हमारे 1K के ऊपर अभी देख रहे हैं लोग, तो उन सभी लोगों को हमने जो बताया कि फ्री डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी 3D फ्री में है, लेकिन प्रैक्टिकल उतना ही टफ है। आपको सर ने बहुत छोटे छोटे टिप्स बताए कि किस तरह उसको स्पोर्ट्स में लाना है, किस तरह उसको ग्राउंड में लाना है, किस तरह उसको बिठा दो, उसको ग्राउंड में लाके देखेगा तो उसके अंदर जाएगा कि मैं भी बॉल से खेलूं। तो यही आज का है कि उसको इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस से लेकर, छोटी छोटी बातों से लेकर आप उसको ला सकते हैं एक बॉल के पास, और खेलना शुरू कर सकते हैं। खेलने की कोई उम्र नहीं होती। आपको सर को देखकर अभी लगता नहीं है कि वो कितने एज के, मुझे तो लगता है अभी भी जवान है। जो लोग ग्राउंड में जाते हैं, घूमते फिरते खेलते, वो जवान ही रहते हैं। कभी मैं आज भी हिमालयन मुझे ट्रैकिंग लगता है करता हूँ। मैं आज भी अभी भी। ट्रैकिंग करने जाता हूँ। हाँ सर, अभी भी ट्रैकिंग करने जाते हैं। मुझे लगता है ट्रैकिंग, उसके बाद जॉगिंग, और उसमें यस, और आज माउंट पे आप कहीं चढ़ते हैं तो बहुत ही बिल्कुल बढ़िया चीज है। बिल्कुल। तो ये सब हमारे जीवन में लाइफ का पार्ट है, वो सब आना चाहिए हमारे लाइफ में। इसी उद्देश्य से हमने इसको स्टार्ट किया है, और इसको हम ऑफलाइन भी कर रहे हैं, वर्धा और नागपुर में और कई जगह। तो जहाँ पे भी लोग मिले उनके साथ हम खड़े होंगे। सर भी हमारे साथ है। तो बहुत टाइम तो हमारा हो चुका है, तो अभी हम रुकते हैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, फिर नए टॉपिक के साथ, नए सोच के साथ, नए विचार के साथ। तो सर का धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। तो यही पे रुकते, फिर मिलेंगे। यही वीडियो आपको यूट्यूब पे ब्रेन ट्रेनिंग OIPA पे लाइव आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।